Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 for the subject of history, and we are doing unit number 5, which is socio-cultural development, and this is fifth lecture for this unit. In this lecture we are going to cover the topic of art and science, the art of calligraphy, and the development of culture. Okay, dear grade 6 students, please open your history book, page number 72, where this topic begins. You are required to listen to the teacher very attentively and carefully and read out the lesson with teacher. And if you want to understand everything clearly, you should listen to the teacher very attentively. Okay, open page number 72. Pick your lead pencil in your hand. You may have to write things on your book or mark something, so please pick your pencil. You should have a neat eraser with you. Your pencil should be sharp. Okay, I am going to begin reading from the topic of art and science. The kings promoted fine arts, music, engraving, and calligraphy made great progress in this period. Okay, dear grade 6 students, you already know that what is calligraphy. You, I hope, have done calligraphy a bit. And here a new term for you is engraving. ये क्या होती है? engraving होती है कंधाकारी, जो जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि वुड के ऊपर लिखा हुआ होता है और वो खुदाई वाला लिखा हुआ होता है, मतलब किसी पेंसिल या किसी इंक के साथ नहीं लिखा होता, लेकिन खुदाई हुई भी होती है राइटिंग की. उस आर्ट को कहते हैं engraving. Amir Khusro is responsible for the great progress in music in that time. ये जो अमीर खुसरो हैं आप ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं. He was the disciple of Nizamuddin Aulia. He provided a better environment to music through Qawwali. He invented new tones by harmonizing the Persian and Hindi music. Sultanate Muhammad Tughlaq took a great interest in music. He populated a city of musicians. उन्होंने musicians को बहुत ज़्यादा ऑनर दिया उस टाइम में, और उनका जो आर्ट था उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसको प्रमोट किया. मोहम्मद तुगलक populated a city of musicians. Muhammad Tughlaq promoted fine arts, but particularly photography. Sultan Sikandar Lodi also promoted this art. The art gallery of Kolkata is the finest masterpiece of painting of that period, which has the portrait of Muhammad bin Tughlaq. The Hindus acquired a specific skill in astronomy in that time, and it made a great progress in same period. Sultans promoted various fields of science, especially mathematics and medicine. जब भी आप कोई पुराने बहुत पिछले टाइम के जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो मेडिकल और मैथमेटिक्स में किया है. जो उनका फिज़िक्स में काम है ना, अगर आप उसको गौर करें तो एक्चुअली इवेंचुअली वो काम भी मैथमेटिक्स के फील्ड का है. सो जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो मैथमेटिशियंस थे एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ आर्ट ऑफ कैलीग्राफी. The art of calligraphy had been closed connected with Islamic culture. क्योंकि जो कैलीग्राफी होती है वो ज़्यादातर जो इस्लामिक कल्चर के साथ उसका ज़्यादा कनेक्शन क्यों है? क्योंकि जो कुरानी आयात होती हैं और जो अहादीस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैलीग्राफ की जाती हैं मॉस्क्स की डेकोरेशन के लिए और स्कूल्स की डेकोरेशन के लिए, मदरसा की डेकोरेशन के लिए. सो the Muslims calligraphers have written Quranic verses and traditions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ट्रेडिशंस ऑफ हॉली प्रॉफिट क्या मतलब? अहादीस जो हैं उनकी. इन यूजुअल फॉर्म ऑफ अरेबिक स्क्रिप्ट, ख़त्ते नस्ख, प्लेन राउंड पर्शियन राइटिंग, ख़त्ते नस्तालिक, एंड अदर स्क्रिप्ट्स विद ग्रेट डिवोशन एंड स्किल. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ नेम्स हैं अरेबिक स्क्रिप्ट और प्लेन राउंड एंड पर्शियन राइटिंग, ये कैलीग्राफी के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स.
नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर। कल्चर आपको पता है कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर तहजीब को कहते हैं, ट्रेडिशन को कहते हैं, और लिटरेचर कहते हैं एजुकेशनल हिस्ट्री को। द मुस्लिम्स स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज वेयर एवर दे वेंट एंड ऑल्सो टुक इफेक्टिव स्टेप्स फॉर एजुकेशन। 1000 इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्टेड इन दिल्ली अलोन। अकेले दिल्ली में कितनी थी? 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थी। तो आप ये सोच सकते हैं, और ये किस टाइम में थी? जिस टाइम पे मुस्लिम्स रूलर्स थे। आप सोच सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा अपनी पीक पे होगी। और अगर आप जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ते हैं वो सब इसी टाइम से बिलोंग करते थे। विच इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन द किंगडम ऑफ दिल्ली। The following steps were taken for the encouragement of knowledge during Delhi's emperor's period। कि जो सल्तनत दिल्ली थी उस टाइम में क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कल्चर और लिटरेचर और नॉलेज और एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट में। महमूद गजनवी प्रोवाइडेड हिज patronage to literature devotedly. He built up a splendid library in Ghazni. He fixed scholarship for teachers and students. Firdausi, Abu Ali Sina and Al-Biruni wrote books. Okay. महमूद गजनवी ने क्या किया? उसने बहुत सारा जो अपनी रकम होती है, ख़जाना होता है, उसमें से बहुत सारी रकम जो है वो लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मुख्तस की। और उन्होंने टीचर्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए और स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए। हेयर सम नेम्स आर गिवन। फिरदौसी, अबू अली सीना, अल-बिरूनी। फिरदौसी वॉज एक्चुअली अ पर्शियन पोइट. Abu Ali Sina was a Persian philosopher and poet, and Al-Biruni earned his name in the field of mathematics and science. He was a great mathematician belonging to Iran, and he was a scholar also. He wrote many books for mathematics and physics and medical field. Okay, Sultan Muhammad Ghori constructed mosques and schools in Ajmer. Sultan Qutbuddin Aibak also constructed schools and mosques. Sultan Shamsuddin Iltutmish established Nasriya. ये नसरिया एक इंस्टीट्यूट का नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, which is a certified proof of his devotion to knowledge. Razia Sultana established the schools of arts and science. Have you ever listened name of Razia Sultana before? Okay. Razia Sultana was actually a ruler of Delhi Sultanate, and she earned her name as the first female Muslim ruler. उनसे पहले कोई भी कभी मुस्लिम रूलर फीमेल नहीं थी, ये पहली फीमेल मुस्लिम रूलर थी और द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके. Amir Khusro is considered among great poets and writers. He wrote 5 Persian collected odes, Diwans, and 10 verses comprising couplets. Minhajuddin Siraj compiled Tabqat-e Nasri, which is a certified history from appearing of Islam in India. ये जो ताबकाते नसरी है ये एक हिस्ट्री की बुक थी. To slaves time, Ziauddin Burni wrote Firoz Shahi history. The mystics जो सूफिया कराम थे used local languages like Sindhi, Punjabi and कश्मीरी इंस्टेड ऑफ संस्कृत. उस टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो मुस्लिम्स यूज़ करते थे वो संस्कृत थी, लेकिन जो सूफिया थे और जो राइटर्स थे वो संस्कृत की बजाय कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे? वो सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, जो भी कोई लोकल लैंग्वेजेस होते थे वो यूज़ करते थे. क्यों? ताकि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उन तक उनके आइडियाज़ और उनका जो मैसेज है और जो एजुकेशन जिस भी एजुकेशनल फील्ड के साथ वो बिलोंग करते हैं और वो बुक्स लिख रहे हैं वो वहाँ के लोकल पीपल तक ईजीली पहुँचे और वो लोग ईजीली उसको समझ सकें. एज अ रिज़ल्ट द लोकल लैंग्वेजेस वर गॉट प्रमोशन. उर्दू केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ दैट पीरियड. उर्दू जो है वो आपने उर्दू की अपने सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा ज़रूर कि जो उर्दू लफ्ज़ है इसका मतलब है लश्करी ज़ुबान यानी कि मिली जुली ज़ुबान. जो उर्दू लैंग्वेज है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है इन सब लैंग्वेजेस का. संस्कृत, पर्शियन, टर्किश, अरबिक, सिंधी, पंजाबी, इन सब के डिफरेंट वर्ड्स मिल के ये उर्दू की जो
लैंग्वेज है ये एग्जिस्टेंस में आई। इट इज़ स्पोकन इन ऑल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि सब लोगों के कुछ ना कुछ वर्ड्स और सब लैंग्वेजेस के कुछ ना कुछ पार्ट्स इसमें मिक्स हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उर्दू लैंग्वेज को समझ सकते हैं। संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, क्योंकि जो एजुकेशनल लैंग्वेज थी ईरान की और सब कॉन्टिनेंट की वो पर्शियन थी। सो संस्कृत बुक्स जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। ये सारे वो स्टेप्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लिए गए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। Okay, now let's discuss our today's homework. You have to learn all these topics that I have explained you in this lesson. So your homework is just to learn all these topics: art and science, the art of calligraphy, the development of culture and literature. Okay, grade 6, good luck. Allah Hafiz.